हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हमने जो सेगमेंट स्टार्ट करा था जिसमें हम हर हफ्ते फॉरेंसिक एक्सपर्ट के द्वारा आप सभी को करियर गाइडेंस दिला रहे हैं, तो उसमें ही आज हमारे साथ में एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट आने वाले हैं और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाउ टू गेट अ जॉब इन एफएसएल थ्रू स्टेट पीएससी, एसएससी और यूपीएससी और अदर एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उनके थ्रू आप कैसे एफएसएल में जॉब पा सकते हो, उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम आज एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट से पूछेंगे और वो आपको गाइड करेंगे। So today we have with us Mr. Shashank, and he is working as senior scientific assistant in forensic science laboratory. So let's welcome him and start our today's interview. Hi everyone. So today we have with us Mr. Shashank. So thank you so much, sir, for giving your precious time and joining us in this interview. Thank you for inviting. So the topic of our interview will be how to get a job in FSL through state PSC, SSC, or UPSC or different type of competitive examinations. Okay. First of all, sir, I would like to have your introduction. So can you please introduce yourself? Sure. I am Shashank Sekhar Tiwari. I am currently working in Forensic Science Laboratory, Delhi. That is in the Rohini. I have done my master's in forensic science from Banaras Hindu University, and then I joined for PhD program in National Forensic Sciences University. So the final submission is still being going on. But yeah, I have the research experience as well as from the last 1 year. I have been working in Delhi FSL, so I have both the experiences right now from the research experience as well as for your work experience also. That's great, that's amazing. So काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इन चीजों के बारे में नहीं जानते हैं कि जो स्टेट पीएससी एग्जाम होता है या फिर जो यूपीएससी है, इन एग्जाम्स के थ्रू हम कैसे एफएसएल में एंटर कर सके, तो उसी को लेके आज हम डिस्कशन करेंगे। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू गेट अ जॉब इन एफएसएल थ्रू पीएससी, एसएससी, यूपीएससी? बेसिक्स क्वेश्चन। Yes, means definitely it is possible, or I can say that to get a government job, this is the only process through which you have to go. Any like state board or any state PSCs, or you can go through any kind of like UPSC, that is for Central Forensic Science Laboratories. So, and for Delhi FSL specifically, there are UPSC exams that are being conducted. So, the only way to get a government job is to go through a state board or through the central board. Okay. So, my next question is, how do state PSC, UPSC and SSC exam differ in terms of recruitment process for forensic experts? मतलब अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, हम जो वैकेंसीज आती हैं वो हम देखते हैं कि कभी एसएससी के थ्रू आ रही है, कभी पीएससी के थ्रू आ रही है, कभी जो है यूपीएससी के थ्रू भी वैकेंसीज आती हैं। तो ये बेसिकली तीनों डिफर कैसे करते हैं? देखिए, स्टेट्स में डिफरेंट बोर्ड्स हैं टू गेट एनी गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो सेंटर में हो चाहे स्टेट्स में हो। लाइक जैसे हमें सारी जॉब्स की रिक्रूटमेंट होती है, सिमिलरली बोर्ड्स, डिफरेंट बोर्ड्स बनाए गए हैं। जैसे कुछ कुछ हैं सेकेंडरी लेवल बोर्ड्स हैं, कुछ कुछ हैं सब कोऑर्डिनेट लेवल बोर्ड्स हैं। इसी तरह स्टेट सर्विस कमीशंस हैं, आपकी पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं। तो एवरी स्टेट हैव देयर ओन पब्लिक सर्विस कमीशंस as well as they have their state selection commissions also, and there are subordinate state selection commissions also. So basically there is a commission and there is a board, both are similar things. In some states it is a state selection commission, in some state it is state selection boards. So that's why the name like SSC, SSB, triple SC, triple SB. So these are all the different boards that are constituted in the states as well as in the center, जहाँ पे हम ये सारी वैकेंसीज उनके थ्रू आती हैं और हम वो सारी वैकेंसीज अप्लाई करते हैं। तो अब जैसे असिस्टेंट लेवल्स की जॉब्स हो गई, जैसे लैब असिस्टेंट्स हो गए, साइंटिफिक असिस्टेंट्स हो गए, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट्स हो गए, इन सब के लिए स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं।
हर स्टेट अपना खुद का ऐसा एक एग्जाम करवाता है। जैसे एमपी में जाएंगे तो एमपी ट्रिपल एससी होता है, एमपी एसएससी होता है। यूपी में आएंगे तो यूपी एसएससी या यूपी ट्रिपल एसबी या यूपी ट्रिपल एससी, इस तरह के बोर्ड्स होते हैं। दिल्ली में सिमिलरली डी ट्रिपल एसबी है, तमिलनाडु में तमिलनाडु एसएससी है। अब जैसे ब्रॉड लेवल पे जाएंगे तो फोरेंसिक साइंस होम मिनिस्ट्री, उस पर्टिकुलर स्टेट की होम मिनिस्ट्री गवर्न करती है, या फिर एक तरह से सेंटर की होम मिनिस्ट्री गवर्न करती है। तो इन सब चीजों में भी सिलेक्शन के लिए कभी कभी पुलिस सर्विसेज, क्योंकि अगर देखा जाए ना तो फोरेंसिक्स अभी भी पुलिस से बाहर नहीं आ पाया है। हम्म। क्योंकि जो एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस कंडक्ट करती है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो पुलिस का होता है। तो कहीं कहीं पे जैसे कर्नाटका बोर्ड हो गया, केरला बोर्ड हो गया, यहाँ पे जो आपकी पुलिस है, पुलिस सर्विसेज कमीशन है या पुलिस सर्विस कमीशन है, ये खुद अपने एग्जाम कंडक्ट कराती है। ओके। और हम अगर ऑफिसर्स लेवल पे जाएंगे, जैसे जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स या असिस्टेंट डायरेक्टर्स, ये जो पोस्ट होती हैं इनमें हम फिर यूपीएससी के थ्रू जाते हैं। चाहे वो अगर वो स्टेट्स हैं तो स्टेट के ऑफिसर स्टेट पीएससी के थ्रू जाएंगे, और सेंटर है सीएफएसएल है, या पर्टिकुलरली दिल्ली यूनियन टेरिटरी है या अलग यूनियन टेरिटरीज है, तो वो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के थ्रू जाएंगे। तो ये ओके। डिफरेंस है स्टेट एसएससी में और यूपीएससी। तो मतलब ये जो जनरल एमपीपीएससी जैसे स्टेट पीएससी एग्जाम्स जो होते हैं वो हर साल होते हैं, यूपीएससी भी जो है वो भी हर साल होता है। तो हाँ क्या ये जो एग्जाम्स होते हैं मतलब फॉरेंसिक साइंस के लिए, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के लिए जो एग्जाम्स होते हैं, तो या ये हर साल होते हैं या फिर इनका पैटर्न भी अलग होता है? या जो मतलब कुछ स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि मैम हम अभी से यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दें क्या, या हम अभी से एमपीपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दें क्या, तो उनके लिए थोड़ा सा मुझे समझाना डिफिकल्ट हो जाता है कि आपका ये जो रेगुलर सिलेबस जो है वही आपको पढ़ना है या डिफरेंट रहेगा। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं क्या? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना सब्जेक्ट नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए। चाहे आप किसी भी प्रिपरेशन के लिए जाओ, मैं ये नहीं कहूंगा कि ओनली फोरेंसिक्स, ठीक है, हम्म। आप किसी भी एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए जाओगे, आपको अपना सब्जेक्ट नॉलेज पे कंट्रोल बहुत जरूरी है। तो जो डेफिनेटली आप पीएससी की तैयारी करने जाओगे तो आप स्पेसिफिक तैयारी करोगे, हम्म। लेकिन आपको तैयारी चाहिए पूरी सब्जेक्ट नॉलेज, क्योंकि एसएससी ये देख करके एग्जाम नहीं कंडक्ट करेगा कि आप फोरेंसिक्स के स्टूडेंट हो या आपका बैकग्राउंड केमिस्ट्री का है, आपका बैकग्राउंड बायो का है। पेपर तो सारे सिमिलर होते हैं सबके लिए। तो आपको वो सारी चीजें आनी चाहिए जो चीज आपके फोरेंसिक्स एज वेल एज आपके केमिस्ट्री, बॉटनी या डिफरेंट डिविजन्स जो है आपके एफएसएल्स में रिक्वायर्ड है। तो आपको सब्जेक्ट नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए। इसके बाद आप अपने यूपीएससी या यूपीएससी लेवल, जैसे जीएस के पेपर्स हो गए, जनरल साइंसेज के पेपर्स हो गए, कंप्यूटर्स के पेपर्स हो गए। इसीलिए मेरा ये मानना है ना कि आप अपनी प्रिपरेशन तो रखो, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा स्किल्स बहुत जरूरी हैं। चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल्स हो, जैसे अभी एमपी पीएससी करंटली अभी एक वैकेंसी है ये साइंटिफिक ऑफिसर्स की, जिसमें आपको ऑनर्स चाहिए, फोरेंसिक साइंस ऑनर्स हो या पर्टिकुलरली आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के ऑनर्स हो, एज वेल एज नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज कंपलसरी। ओके। वो मिनिमम 1 ईयर्स का है ना, जैसे ओ लेवल के एग्जाम्स हो गए या ट्रिपल सी के एग्जाम्स हो गए, मतलब आपको मिनिमम एक कंप्यूटर रिक्वायरमेंट भी चाहिए। तो अभी जो जो स्टार्टिंग फेज में है, जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, वो अभी भी अपने एक्स्ट्रा स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर का नॉलेज हो गया या अपने जनरल अवेयरनेस के हो गए। ये सारी चीजें उनको अपने आप में अडॉप्ट करनी पड़ेंगी शुरू से ही। आप सोचोगे कि बैठ करके एक पर्टिकुलर प्रिपरेशन करें, वो पॉसिबल नहीं है ना। हम्म। तो जनरल अवेयरनेस ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसके लिए आपको स्पेसिफिकली कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत पड़े, है ना। आप अपने पर्टिकुलर सराउंडिंग्स में या आपके न्यूज़पेपर्स के थ्रू भी आप जनरल अवेयरनेस ला सकते हो और उनको अप्लाई कर सकते हो अपने एग्जामिनेशंस में। ओके। मतलब कि हमें अपनी जो भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान ही आप जनरल अवेयरनेस तो भाई सभी को अवेयर होना बिल्कुल चाहिए ऑब्वियसली। बिल्कुल तो आप बिल्कुल। रेगुलर बेसिस पे वो पढ़ते रहो, और साथ में जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है, आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो तो वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो, फिर उसके बहुत बाद में आप जरूरी है, फोकस बहुत कर जरूरी। सकते हो कि मुझे अभी ये पर्टिकुलर एग्जाम देना है। हाँ, क्योंकि अभी आप देखोगे ना कि बहुत सारे स्टेट्स जो स्टाफ कमीशंस हैं या सर्विस सिलेक्शन कमीशंस हैं या बोर्ड्स हैं, इनमें स्पेशलाइजेशन मांग रहे हैं, है ना। हाँ। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अभी स्पेशलाइजेशन करेंटली नहीं है। तो अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन नहीं है और आपको जाना है स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स में, तो वो क्या मांगेंगे, फिर आपको ट्रेंड होना पड़ेगा उस हम्म। पर्टिकुलर फील्ड में। आपको कहीं से वो ट्रेनिंग अडॉप्ट करनी पड़ेगी, चाहे वो पेड ट्रेनिंग हो या अनपेड ट्रेनिंग हो, है ना। हम्म। तो ये एक्स्ट्रा स्किल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए। ओके।
So my next question is, what is the required educational qualification to apply for the position in FSL through these exams? क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें लगता है कि हमने बीएससी जो है फोरेंसिक से नहीं करी है, हमने दूसरे सब्जेक्ट से करी है, तो क्या हम इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं? या फिर फोरेंसिक से तो हमने करी है, बट कई बार होता है बहुत सारे बच्चे जिनका ऑनर्स है, या उनके बीएससी टाइम में उनका जो सब्जेक्ट था वो केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं रहा उनके कॉम्बिनेशन में, तो ये सारी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं भी, क्योंकि अपने पीएचडी के टाइम पे आई वाज टेकिंग क्लासेस एमएससी स्टूडेंट्स की एनएफएसयू में, मैं उनके ले रहा था स्पेसिफिकली। और फिर फ्रॉम बीएचयू आल्सो हमारे जो जूनियर्स हैं, या और भी डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट से जो जिनसे मेरा इंटरेक्शन होता है, तो सबका ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि सबको जॉब अभी चाहिए, है ना। अभी जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड जो हमारे पास है, इसमें आपको ग्रेजुएशन होते होते मीन्स अटेनिंग अ एज ऑफ 18 to 20 ईयर्स, आपको जॉब के लिए दौड़ना शुरू हो जाता है कि कहीं से आप पैसे कमाना शुरू कर दो। तो देखो, इस पर्टिकुलर फील्ड में आने के लिए ना हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आखिर किसी एफएसएल का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है। तो जो सबसे बेसिक, जो सबसे मिनिमम क्राइटेरिया, मैं साइंटिफिक वे की बात करूंगा, एडमिनिस्ट्रेटिव इज अ डिफरेंट थिंग। हम हम्म। हम हम चूंकि साइंस या साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं उसके लेवल से बताता हूँ। तो सबसे नीचे जो लोएस्ट पोस्ट आती है किसी भी एफएसएल में, वो लैब असिस्टेंट या लैब अटेंडेंट से शुरू होती है। हम्म। जैसे यूपी में और एमपी में लैब अटेंडेंट्स की पोस्ट होती है, ठीक है। हम्म। और जैसे हमारे यहाँ पे, अपने यहाँ पे लैब असिस्टेंट्स की पोस्ट होती है, लैब हम्म। अटेंडेंट से ज्यादा लैब असिस्टेंट की पोस्ट होती है। तो चाहे वो लैब अटेंडेंट हो या लैब असिस्टेंट हो, दोनों के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया अभी जो करेंटली है, वो है ग्रेजुएशन। ठीक हम्म। है। और सैडली आई एम डिसअपॉइंटेड टू से दैट अभी करेंटली बीएससी फॉरेंसिक साइंस नहीं है। बहुत सारे राइट। एसएससीज में, बहुत सारे यूपी, यहाँ तक कि बोर्ड्स में, जो स्टेट के बोर्ड्स हैं, जहाँ पे स्टेट में बीएससी की क्लासेस चल भी रही हैं गवर्नमेंट लैब्स में हम्म। या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, वहां भी अभी फॉरेंसिक साइंस, बीएससी फॉरेंसिक साइंस नहीं इंक्लूड किया गया है। मे बी आज के 2 साल 3 साल के बाद वो इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो अभी जो है, जूनियर लैब असिस्टेंट या लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है, वो बीएससी इन एनी कोर सब्जेक्ट, चाहे वो केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, साइकोलॉजी हो, कुछ भी हो। आर्ट्स में पर्टिकुलरली साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्रिमिनोलॉजी, ये 2 सब्जेक्ट्स हैं। और हम्म। साइंस में आपके जितने भी साइंस के कोर सब्जेक्ट्स हैं, ये रिक्वायर्ड होते हैं अभी करंटली के मैं बता रहा हूँ। इसमें लैब असिस्टेंट या जूनियर लैब असिस्टेंट में देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एक्सपीरियंस। मीन्स ओके। अगर आपको एंट्री करनी है, तो इसमें आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बीएससी इन योर सब्जेक्ट होना चाहिए। हम्म। फिर इसके ऊपर बढ़ते हैं, तो जनरली सारी लैब्स में जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट होती हैं। हम्म। इनमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, जहां तक कि मैंने अभी तक सारे एफएसएल्स में देखा है, मिनिमम रिक्वायरमेंट इज एमएससी। ठीक है। हम्म। एमएससी आपका कोर सब्जेक्ट में भी हो सकता है, एमएससी फोरेंसिक साइंस में भी हो सकता है। अभी सभी जगहों पे ये एक अच्छी चीज शुरू हुई है एसए और जेएसए लेवल के लिए, कि इसमें स्लैश फोरेंसिक साइंस हैज बीन इंक्लूडेड इन द रिक्रूटमेंट रूल्स, आरआर रूल्स जिनको बोलते हैं। इसके ऊपर बढ़ते हैं, तो कई सारी लैब्स में जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट नहीं होती है, डायरेक्ट सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट्स की पोस्ट होती है। एसए के बाद डायरेक्ट एसएसए की पोस्ट होती है। जब आप एसएसए पे जाते हो, और यहाँ पे चक्कर शुरू होता है ग्रेड पे का, है ना। हम्म। किसी भी गवर्नमेंट जॉब में देयर आर पे लेवल्स, जो हम्म। 7th पे कमीशन के थ्रू किए गए हैं। और कहीं कहीं पे 6th पे कमीशन, जैसे कर्नाटका में अभी 6th पे कमीशन है, बाकी सब कई जगहों पे 7th पे कमीशन है। तो इनमें जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो एमएससी, और अगर आप ग्रेड पे आपका 4200 या उससे ऊपर है, तो मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। राइट। जैसे अभी मैं यहाँ पे DSSS या जिस पोस्ट पे मैं हूँ, सीनियर साइंटिफिक हम्म। असिस्टेंट पे, यहाँ पे द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। ओके। एंड द एक्सपीरियंस शुड बी इन द रेलिवेंट फील्ड। जैसे आपको केमिस्ट्री या टॉक्सिकोलॉजी या इनमें जाना है, तो योर रेलिवेंट फील्ड ऑफ वर्क शुड बी केमिस्ट्री और टॉक्सिकोलॉजी और फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, ओनली दिस वन। अगर आपको बैलिस्टिक्स में जाना है, सो योर वर्क शुड, योर पीएचडी वर्क और योर एक्सपीरियंस शुड बी इन बैलिस्टिक्स, फिजिक्स और फिजिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स। राइट। इसके ऊपर जब जाते हैं, तो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर या साइंटिफिक ऑफिसर्स, या कहीं कहीं पे सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स की पोस्ट होती है। यहाँ पे द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज एमएससी प्लस 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। राइट। लेकिन अभी क्या होता है ना, कि जैसे जैसे आप लेडर में ऊपर चढ़ते जाते हो, तो नंबर ऑफ सीट्स स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, है ना। कहीं की अगर आप साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट 50 है,
तो एसएससी की पोस्ट 25 हो जाएगी, उसके ऊपर 5 पोस्ट हो जाएंगी। तो जब पोस्ट घटती जाती है तो घुसना ज्यादा कठिन हो जाता है है। ऑफिसर्स के पोस्ट के लिए। तो इन सब केसेस में आपको डिजायरेबल में वो पीएचडी भी डाल देते हैं, हम्म या फिर मिनिमम 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डाल देते हैं। ठीक है। तो इनको तो, और यूपीएससी में तो आप पर्टिकुलरली अगर केमिस्ट्री में देखोगे तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ही 5 इयर्स कर दिया है उन्होंने, हम्म है ना। किसी किसी में 3 इयर्स है, नहीं तो जनरली केमिस्ट्री और टॉक्सिकोलॉजी में तो 5 इयर्स है। बाकी हम्म सारे सब्जेक्ट्स में, साइकोलॉजी में, बाकी सारी चीजों में 3 इयर्स का होता है। ठीक है। इसमें भी अब जैसे कुछ फील्ड जैसे मैंने आपको बताया, उसमें स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए, जैसे बैलिस्टिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, उसमें वो मांगते हैं कि आपका सर्टिफिकेट कोर्स भी होना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर साइकोलॉजी फील्ड में, या किसी जैसे आप क्लिनिकल साइकोलॉजी फील्ड है फोरेंसिक्स में, उसमें भी आपको एक स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए। तो ये आपके जॉब पे, या ये आपके जो रिक्रूटमेंट जो निकलती है, एडवर्टीजमेंट्स निकलता है, उसमें ये सारी चीजें बहुत डिटेल में दी गई रहती हैं। तो अभी प्रिपरेशन के लिहाज से तो आपको अपना जो कोर है वो लेके चलना है। हम्म स्किल्स आप अडॉप्ट करते रहो, या पुराने रिक्रूटमेंट रूल्स देखते रहो, उसके हिसाब से अपने स्किल सेट को इंक्रीज करते रहो। ठीक है। एक स्पेसिफिक मैं आपको इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, जैसे है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, है ना। हम्म अभी करंटली क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन किसी भी स्टेट बोर्ड में नहीं है, किसी भी स्टेट बोर्ड में नहीं है, पूरे इंडिया के किसी स्टेट बोर्ड में क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड नहीं किया गया है। हाँ, क्यों? इसका रीजन मैंने जैसे आपको शुरू में बोला था कि अभी भी जो फोरेंसिक साइंस लैब्स हैं वो बहुत सारे स्टेट्स में पुलिस के अंडर में आती हैं। हम्म और इंडिया में जो करंट ट्रेंड है, या पिछले 50 सालों का, 60 सालों का जो ट्रेंड है, वो ऐसा है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस कैरी आउट करती है ना। फोरेंसिक केवल एक एज एन असिस्टेंट काम करता है स्पेसिफिक केसेस में। अभी आप हाँ देखोगे तो हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने अभी कुछ टाइम पहले बोला था कि every case which involves more than 6 years of imprisonment will require a forensic expert और a राइट forensic investigation, हम्म कि उनकी रिपोर्ट जरूर चाहिए। तो ये चीजें अभी धीरे धीरे आ रही हैं, लेकिन करेंटली क्या है कि ये सारा कुछ अभी पुलिस के अंडर में है। तो इसीलिए जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन है, ये एफएसएल्स में कोई पोस्ट नहीं है ना। हम्म गवर्नमेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। सिर्फ हाँ इसका एक ही मीन्स अपवाद आप कह सकते हो, जो है कर्नाटका में। कर्नाटका में अभी क्राइम सीन ऑफिसर्स की पोस्ट निकलनी स्टार्ट हो गई है, जो कि गवर्नमेंट जॉब की पोस्ट है। वहां पे 6th पे कमीशन है, वहां पे क्राइम सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स बोलते हैं उनको, सोको, SOCO, सीन ऑफ हम्म क्राइम ऑफिसर्स। जहां पे क्राइम सीन के लिए स्पेसिफिक डेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब क्रिएट हो चुकी है। तो मे भी हम ऐसा होप करते हैं कि आगे के आने वाले ईयर्स में बाकी सारे स्टेट्स में भी ये सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स रिक्वायरमेंट इनकी गवर्नमेंट जॉब के थ्रू शुरू हो जाए। ओके अभी मतलब अभी करंटली कॉन्ट्रेक्चुअल है। हाँ, अभी कॉन्ट्रेक्चुअल। ओके तो आने वाले कुछ सालों में जो है फोरेंसिक साइंस बहुत ज्यादा लेवल पे इवॉल्व होने वाला है। अभी प्रेजेंटली बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा ये तो सा आप भी फोरेंसिक देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं कि हाँ आज के 2 साल पहले का ट्रेंड और अब का ट्रेंड में काफी डिफरेंस आ चुका है। वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। Okay. So my next question is, could you elaborate on the selection criteria and the exam pattern of these exams? कि भाई डायरेक्ट इंटरव्यू भी होता है, कई सारे ऐसे वैकेंसीज निकलते हैं कि डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, कुछ में जो है वो पहले एग्जाम लेते हैं फिर इंटरव्यू होता है, तो वो इन सब में कैसा क्राइटेरिया रहता है, एक पैटर्न क्या रहेगा? देखिए, एक एक जनरल 2014 में एक मेजर डिफरेंस आया था सिलेक्शन क्राइटेरियाज में, आफ्टर कमिंग ऑफ दिस करंट गवर्नमेंट, कि जो ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट हैं, जनरली ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो पोस्ट हैं, इनमें इसमें इंटरव्यू को हटा दिया गया था, है ना। स्पेसिफिकली रिटन एग्जाम्स होंगे और डायरेक्टली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये जो फील्ड है ये बहुत ही एक तरह से सेंसिटिव फील्ड है, हम्म फोरेंसिक साइंस इज अ वेरी सेंसिटिव फील्ड। आप सिर्फ एक लाइफ से नहीं खेलते हो, मीन्स आप केवल एक्यूज या केवल विक्टिम से डिपेंडेंट नहीं होते हो, आप एक्यूज की पूरी फैमिली, विक्टिम की पूरी फैमिली, द सोसाइटी एज अ होल एज वेल एज द कंट्री इटसेल्फ, मीन्स आपके ऊपर इन सभी चीजों का भार है। तो इट इज अ हम्म वेरी सेंसिटिव फील्ड राइट नाउ, ऑल्सो इट इज अ वेरी सेंसिटिव फील्ड। तो अभी क्या है कि कई सारे जगहों पे ग्रुप बी की पोस्ट तक में भी उन्होंने इंटरव्यू रखा है। सी और हम्म डी में कोई इंटरव्यू नहीं है। ग्रुप बी और ग्रुप ए की पोस्ट, ग्रुप ए तो वो इंटरव्यू इज कंपलसरी। कहीं कहीं ग्रुप बी की पोस्ट, जैसे सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट हो गई, या जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स की पोस्ट हो गई, ये ग्रुप बी में आते हैं।
है ना। कहीं कहीं साइंटिफिक असिस्टेंट भी ग्रुप बी में है, बट जनरली साइंटिफिक सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इज अ ग्रुप बी, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर इज अ ग्रुप बी। जैसे ही आप सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर या सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पे जाओगे वो ग्रुप ए हो जाएगा। तो इनमें इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट होती है। इनके नीचे बाकी जितने भी हैं सब में आपको सिर्फ रिटन एग्जाम की ही रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। अब जैसे जहाँ पे रिटन एग्जाम रिक्वायर्ड है, जहाँ पे जिन स्टेट एफएसएल्स में या जिन स्टेट बोर्ड्स में रिटन एग्जाम रिक्वायर्ड है, वहां पे एक जनरल ट्रेंड मैं आपको, जैसा मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दे रखे हैं, वहां पे ये ट्रेंड है कि आपके दो पेपर्स होते हैं। मीन्स ऐसा नहीं कि दो अलग अलग टाइम पे होंगे, सेम ही पेपर में दो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट आपका होता है जनरल अवेयरनेस या जनरल साइंसेज का, ठीक है, जिसको एक तरह से जीके आप बोल सकते हो, जिसमें जनरल साइंसेज आता है आपका, इस लैंग्वेज सब्जेक्ट्स जैसे इंग्लिश, हिंदी, कहीं कहीं पे संस्कृत, कहीं कहीं पे कंप्यूटर, रीजनिंग, ये सारी चीजें इसमें आती हैं अगर रिटन एग्जाम है तो। सेकेंड पार्ट होता है आपका सब्जेक्ट नॉलेज। तो कहीं कहीं पे जैसे तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन में वो फोरेंसिक साइंस का पेपर रखते हैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको केमिस्ट्री, स्पेसिफिकली केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं। अभी यूपी में, उत्तर प्रदेश में जनरल साइंसेज रखा जाता है, या तो फोरेंसिक साइंस भी बहुत कम हो जाता है, जनरल साइंसेज रखा जाता है। दिल्ली ट्रिपल एसबी और एमपीपीएससी में ये ट्रेंड देखा गया है कि एमपीपीएससी में तो फोरेंसिक साइंस का ही एक पेपर होता है, और अच्छा। फोरेंसिक साइंस में भी एमपी में ये ट्रेंड देखा गया है कि ज्यादातर क्वेश्चन सीन ऑफ क्राइम से रिलेटेड होते हैं और इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड होते हैं। डी ट्रिपल एस बी या जो यहाँ पे सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट या ग्रुप बी के जो एग्जाम्स होते हैं दिल्ली में, यहाँ पे ये ट्रेंड देखा गया कि इसमें जनरल आपके साइंस एज वेल एज कभी कभी आपके 12th लेवल के मैट्रिसेस, इट मीन्स मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, कभी कभी डिफरेंशियल इंटीग्रेशन तक आ जाता है। कंप्यूटर आ जाए, कंप्यूटर से रिलेटेड एक पेपर हो जाता है, इंग्लिश का एक पेपर होता है, हिंदी का एक पेपर होता है। देर आर 5-6 पेपर्स फॉर अ सिंगल एग्जामिनेशन कहीं कहीं पे। कहीं कहीं केवल जीएस फोरेंसिक साइंस, कहीं कहीं पे जीएस प्लस सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे केरला में जनरल साइंस का एक पेपर होगा और दूसरा जो पेपर होगा वो डायरेक्ट आपके केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, किसी भी चीज का हो सकता है। लेवल जो होता है ये जनरली आप कह सकते हो कि एमएससी का लेवल होता है, और अगर कोर सब्जेक्ट्स हैं तो बीएससी ग्रेजुएशन के लेवल के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ठीक है। केरला पीएससी हो गया आपका, या केरला एसएससी हो गया, राजस्थान एसएससी हो गया, या राजस्थान पीएससी हो गया, और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पे फोरेंसिक साइंस के क्वेश्चंस कम होते हैं, आपके कोर सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, मीन्स बेसिक साइंसेज के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये अभी करंट ट्रेंड है हमारे यहाँ पे सिलेक्शंस का इन डिफरेंट बोर्ड्स। ओके, ठीक है। तो मतलब कि मेन फॉरेंसिक तो ठीक है, लेकिन हमें जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो भी कई बार फोकस करने पड़ेंगे, क्योंकि हाँ ऑब्वियस सी बिल्कुल बात है कि फिर जो एग्जाम्स में कोर सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री पूछा जा रहा है, बायो पूछा जा रहा है, तो ये सब भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली बिल्कुल, और ये चीज अगर आपको बहुत कोई, शुरू से शुरू करना पड़ेगा। ये हाँ, ऐसा बायो नहीं कि और वो आप आज बायो पढ़ना वाली, शुरू करो और कल हाँ आपको हाँ, आ जाए, ये पॉसिबल राइट नहीं है। राइट। आपको कोर सब्जेक्ट्स तो आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप आ भी जाओगे यहाँ पे एफएसएल में, काम भी करना शुरू कर दोगे, जो कि अभी हम देख रहे हैं। तो चूंकि मेरा बेसिक साइंसेज है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनको बेसिक्स नहीं पता है कि कौन सा रिएक्शन क्यों हो रहा है, आप कौन सा टेस्ट किस पर्टिकुलर टॉक्सिकोलॉजी के लिए, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री का है फील्ड, तो आपको कौन सा टेस्ट क्यों लगाना है, क्या स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं इसके लिए, ये सारी चीजें पता ही नहीं है, क्यों ये पर्टिकुलर कलर आता है, क्या आता है। तो आप, ये सारी चीजें मैं सिर्फ एफएसएल में काम करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, आप जब इंटरव्यू फेस करोगे तो आप नहीं जानते हो कि आपके सामने जो बैठा है वो कोर सब्जेक्ट का है या फोरेंसिक्स का है, वो राइट। आपसे कुछ भी पूछेगा। तो इसलिए आपको चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक साइंसेस इसलिए जरूरी हो। ओके, so my next question is, are there any fixed number of vacancies every year, या फिर वो डिपेंड करता है कि एफएसएल की क्या रिक्वायरमेंट है? वैकेंसीज का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हर साल इतनी वैकेंसी तो आएगी ही, लाइक एमपीपीएससी या यूपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी कुछ फिक्स नंबर रहता है कि यार इतनी एटलीस्ट वैकेंसी किसी भी चीज की निकल रही है तो इतनी आएंगी ही। तो क्या इसमें भी ऐसा ही होता है क्या कि फिक्स नंबर ऑफ वैकेंसी आएंगी ही? ऐसा तो नहीं है पर्टिकुलरली, अगर देखा जाए तो हाँ, मीन्स अब हम ये कह सकते हो कि 10 सीट तो आएगी,
दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट ऐसा कोई फिक्स, देयर इज नो फिक्स क्राइटेरिया। हम सिर्फ मैं सिर्फ फॉरेंसिक साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी तक की बात कर रहा हूँ। यूपीएससी में भी आप देखोगे तो नंबर ऑफ पीएससी कैंडिडेट्स या नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स इन पब्लिक सर्विस कमीशंस या स्टेट कमीशंस, सिर्फ फॉरेंसिक्स नहीं, ऐसे जनरल भी आप देखोगे तो फिक्स नहीं है। कभी 50 आएगा, कभी 100 हो जाएगा, कभी 150 हो जाएगी, कभी। तो फोरेंसिक फील्ड चूंकि अभी इट इज अ ग्रोइंग फील्ड, इस वजह से हमें थोड़ी वैकेंसी ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि अलग अलग स्टेट एफएसएल की अपनी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे क्राइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे रीजनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज इंक्रीज हो रही हैं, मोबाइल फोरेंसिक लेबोरेटरीज इंक्रीज हो रही हैं, सीन ऑफ क्राइम के लिए ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो अभी जो पोस्ट है वो करंटली तो कॉन्ट्रेक्चुअल आ रही हैं, बट आगे चल के मे बी ये सारी फील्ड जैसे जैसे वास्ट होती जाएगी, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स या नंबर ऑफ पोस्ट जो होती है वो इंक्रीज करती चली जाएगी। कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। अब जैसे क्या होता है कि एफएसएल जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट देता है ना, मीन्स अब जैसे आप देखोगे तो किसी भी एफएसएल में इतने सारे मतलब 50 ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है, 100 असिस्टेंट्स की रिक्वायरमेंट है, 20 एडीज की रिक्वायरमेंट है, 10 डीडीज की रिक्वायरमेंट है, एक डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है। मीन्स ऐसे मान लो आपने एक एफएसएल ने अपना रिक्वायरमेंट बना करके गवर्नमेंट को दे दिया या किसी बोर्ड को दे दिया। अब बोर्ड देखता है फिजिबिलिटी, सबसे पहले वो चेक करेगा कि आपका वर्कलोड कितना, how much cases that particular FSL is getting and how much it is disposing of, कितना वो केस उनके डिपार्टमेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट की फंडिंग कितनी है, कितने ऑफिसर्स को हम ले सकते हैं, फिजिबिलिटी कितने की है, ये सारी चीजें कंबाइन करके फिर वो निकालते हैं कि इतने पोस्ट हम आपको अभी इस साल क्रिएट करके दे सकते हैं। तो वो जो क्रिएटेड पोस्ट है वो फिर एडवर्टाइजमेंट में आती है और फिर उसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। लेकिन होपफुली, मैं जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा आपसे कि चूंकि ये फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो नंबर ऑफ पोस्ट आर गोइंग टू इंक्रीज इन फ्यूचर, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 years दे इट इज गोइंग टू इंक्रीज। तो ये तो अभी आप ये मान के चलो कि फील्ड चूंकि फैल रही है, तो अभी आपके पास रिक्वायरमेंट अपने रिक्रूट होने के चांसेस काफी ज्यादा हो रहे हैं अभी करंट के ईयर्स में, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए एक्स्ट्रा स्किल्स तो बहुत जरूरी है ना, वो बहुत जरूरी है, सबसे पहले तो वही है। ओके। तो मतलब काफी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो जितने भी जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, यूजी में है या पीजी में है, जिन्हें कहीं ना कहीं हाँ कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं कि इस फील्ड में क्यों आ गए हो, इसमें तो वैकेंसी ही नहीं रहेगी, तुमको जॉब नहीं मिलेगी आगे। तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ, समझना क्योंकि कि आगे मैं अपना बहुत एक्सपीरियंस एक वैकेंसीज शेयर, है। हाँ जी, हाँ मैं हाँ। अपना एक्सपीरियंस जैसे अभी शेयर करूंगा। मैंने अपने जो मेरा काम था एमएससी का, बीएचयू का, उसमें जो फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर में वी हैव टू गो टू एनी पर्टिकुलर सीएफएसएल फॉर आवर रिसर्च वर्क और रिसर्च रिलेटेड वर्क। तो मैं चंडीगढ़ सीएफएसएल गया था बैलिस्टिक्स डिवीजन में, जहाँ पे जो पहली चीज मुझे सुनने को मिली जो मैं हमारे ऑफिसर्स थे उनसे कि व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर एमएससी फॉरेंसिक साइंस, इसकी जरूरत ही क्या थी, मैं तो एमएससी केमिस्ट्री हूँ, मैं तो एमएससी फिजिक्स हूँ, इसकी इसको तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। अब मैंने मेरा चूंकि मुझे पीएचडी करनी थी तो मैंने शेयर किया, तो उन्होंने बोला कि कोई पीएचडी करने का कोई मतलब नहीं है, जो कोर सब्जेक्ट्स वाले हैं वो इसमें आकर के सब्जेक्ट लेके चले जाएंगे या ये सारी चीजें। तो देखो, किसी भी सब्जेक्ट में लड़ाई है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे फॉरेंसिक्स हो, पुलिस हो, इंजीनियर्स हो, कुछ भी हो, उसमें लड़ाई है और आपको लड़नी पड़ेगी। बिना लड़ाई लड़े आप आगे नहीं जा सकते। और क्रिटिसिज्म अगर देखेंगे तो क्रिटिसिज्म तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर का भी होता है ना, कि बिल्कुल आपने सीएस क्यों ऑप्ट किया है, तो फील्ड में सब ऑलरेडी ऐसा है वैसा है। तो इधर से सुनना, इधर से निकालना है, अपने चीज पे मेहनत करनी है, अपने स्किल्स पे मेहनत करना है, जॉब की कोई कमी नहीं होने वाली। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी बच्चों को सबसे ज्यादा यही स्ट्रेस हो रहा है कि हमने ले तो ली फील्ड, अब हम ना तो छोड़ पा रहे हैं, ना हम कुछ कर पा रहे हैं, और जो भी मिलता है वो हमें ये बोल देता है कि क्यों ले लिया, इससे अच्छा तो बेसिक साइंस ले लिया होता। तो सही उनके बात। लिए है कि नहीं भाई, बहुत स्कोप है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर दीज एग्जाम कंडक्टेड एवरी ईयर? क्या ये एग्जाम्स हर साल होते हैं या फिर कुछ जरूरी नहीं है कि हर साल हो? अगर देखो, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, है ना, 27 स्टेट्स है और इतनी सारी यूनियन टेरिटरीज हैं, तो किसी न किसी एफएसएल में कभी ना कभी वैकेंसी होगी, है हम्म। ना। हर महीने आपको किसी न किसी एफएसएल से कोई ना कोई वैकेंसी दिखेगी। तो मैं ये तो बोलूँ, मेरा आंसर सिंपल सा होगा, फ्रिक्वेंटली देयर आर जॉब्स, हम्म। फ्रिक्वेंटली, है ना। किसी एक स्टेट में हो, किसी या यूपीएससी के थ्रू हो, या किसी स्टेट बोर्ड के थ्रू हो, या किसी पुलिस बोर्ड के थ्रू हो, बट है हर साल
या मैं हर साल तो बहुत बड़ी चीज है, मैं तो ये कहूंगा ऑलमोस्ट हर मंथ आपको वैकेंसी दिखेगी किसी न किसी स्टेट से रिलेटेड, है ना। तो इसके बारे में तो चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। Okay. So let's move to another question. Uh, so my next question is, what advice would you like to give someone who is preparing for these exams and or who want to start their career in forensic science field? ओके, सो बेसिकली मैं तो ये बोलूंगा कि फर्स्ट ऑफ द थिंग इज यू हैव टू अ फर्म ग्रिप ऑन योर स्पेशलाइजेशन। आपको फोरेंसिक साइंस के जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में है, बैलिस्टिक्स में है, किस में आपका इंटरेस्ट है। उस इंटरेस्ट के बेसिस पे आपको अपना स्पेशलाइजेशन लेना है। अगर आपको रिसर्च करना है या एक्सपीरियंस लेना है तो आपको उसी फील्ड में लेना है। आप ये मत सोचो कि आप सारे हर फील्ड में थोड़ा 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 एक्सपीरियंस ले लो, दैट उसका कोई मतलब नहीं है। किसी एक फील्ड को पकड़ो, किसी एक स्पेशलाइजेशन को पकड़ो और उस पर फॉर्म ग्रिप ले लो। दूसरी चीज है परसिवियरेंस, है ना। आपको एक बार में यू विल नॉट गेट सक्सेस, यू विल हैव टू डू इट मोर एंड मोर एंड मोर, बट इन टू योर स्पेशलाइजेशन। ऐसा नहीं कि आप देख रहे हो कि साइकोलॉजी फील्ड में पोस्ट कम है तो आपने उस पर ध्यान देना कम कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको पूरा फॉर्म ग्रिप होना चाहिए अपने पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के लिए। इसके अलावा जैसा मैंने पहले भी कहा था, बेसिक अवेयरनेस अबाउट योर स्टेट, अबाउट द कंट्री, द जनरल थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन द स्टेट, इन द कंट्री, यू शुड नो अबाउट इट। इसके अलावा हैव अ थॉरो नॉलेज रिलेटेड टू द सिलेबस प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट स्टेट सर्विस कमीशंस या यूपीएससी। जो उनके सिलेबस हैं आप उनको शुरू से ही उठा लो और उनके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो और फॉर्म ग्रिप बना लो, एक थॉरो नॉलेज ले लो उन सभी चीजों पे, वो आपको हेल्प करेगा आगे। Okay. So एक और छोटा सा क्वेश्चन ये पूछूंगी कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड सैलरी, एक मतलब एक जनरल तरीके से कि एक्सपेक्टेड सैलरी कोई स्टार्टिंग लेवल पे देखिए, क्या एक्सपेक्ट करेगा? अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे तो जो हम मैंने एंट्री लेवल बताया था लैब असिस्टेंट का, तो दैट सैलरी वेरीज अराउंड 40,000, 40,000 के अराउंड सैलरी वेरी करती है, डिपेंडिंग अपॉन उस स्टेट में कौन सा पे कमीशन अभी काम कर हाँ। रहा है। उसके बेसिस पे मिनिमम जो एंट्री सैलरी है दैट इज फॉर लैब असिस्टेंट इज 40,000। और अगर मैं ऑफिसर पोस्ट की बात करूं तो एंट्री लेवल इज साइंटिफिक ऑफिसर और सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, तो द सैलरी वेरीज अराउंड 70 to 90,000। सो दिस इज द रेंज इज फ्रॉम 40 to 90, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितना नॉलेज है। जितना एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाएगा आप उतने ऊपर वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल होते जाओगे। जितना आपने एक्सपीरियंस गेन किया है वो आपको वहां पे हेल्प करेगा एंड यू विल गेट अ वेरी गुड सैलरी। सैलरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है पर्टिकुलरली गवर्नमेंट जॉब्स में। ओके, तो मतलब सैलरी और आई इसके थिंक अलावा इज एडिशनल क्वाइट गुड। बेनिफिट्स हैं गवर्नमेंट जॉब्स के, जैसे हाँ। हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलता है, आपको मेडिकल सुविधाएं मिलती है, इंश्योरेंस मिलता है, आपको पेंशन, आप पेंशन आपके लिए आप एलिजिबल होते हो, आपको टीए मिलता है, टीए डीए मिलता है, आपको घर जाने के लिए अलाउंसेस मिलता है, एलएनटी मिलता है बाहर के किसी कंट्री में जाने के लिए या होम टाउन जाने के लिए या होम टाउन के बाहर जाने के लिए। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे ऑफर्स हैं अगर आप इस फील्ड को ऑप्ट करते हो तो। और ओके। सबसे बड़ी चीज जो इसके लिए सब लोग की इच्छा होती है, दैट इज, और जिस फील्ड के लिए ये जाना जाता है, दैट इज योर रेस्पेक्ट एंड द पावर यू गेट, है ना। राइट। द रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी, द रेस्पेक्ट with all the other members of the society, as well as the power you get when you are in the field of forensic science। जैसा कि अभी होम मिनिस्टर ने बोला कि फोरेंसिक साइंस नाम सुन करके सामने वाले को थोड़ी देर के लिए लगता है कि मतलब ये क्या फील्ड आ गई है हमारे सामने। हाँ, राइट। Okay, so lastly, my question is like, do you have any personal tips or experience जो आप किसी एक forensic science के स्टूडेंट को देना चाहोगे? पर्सनल टिप्स है या कोई ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग सा केस आपके साथ हुआ हो जो आप शेयर करना चाहेंगे? देखो, कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने परसिवरेंस के बारे में बोला, मैं अपना एक शेयर करूंगा। जैसे तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन में वी हैड क्वालिफाइड, मैं और मेरे कई सारे मेरे साथ के थे जिन्होंने तमिलनाडु पीएससी क्रैक किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, then there was a shortlisting for interview and we were not shortlisted, and the reason was miscellaneous, है ना। So sometimes luck is required, you don't know that हाँ। for which reason you will not be selected for a particular thing। तो एक तो ये चीज है, ये मेरा एक इंटरेस्टिंग सा किस्सा है जो मेरे साथ हुआ था particularly। and here also in DSSB, since I had a big backup of other subjects other than forensic science like Hindi, English, reasoning, so the paper here in DSSB was not, there was not a question of forensic science,
but still I qualified because the reason was because I have a firm knowledge of reasoning, I have a firm knowledge of Hindi, English, so that helped me to get those marks that apart from the core subject I had a grip knowledge onto all these things, so I was able to qualify. ये भी एक चीज है जो आपको सीखनी बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने बोला कि जनरल साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हो गए जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो गया, आप इनको रोज करो, थोड़ा थोड़ा हम्म। थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ो। ये आप, क्योंकि फोरेंसिक साइंस तो सब पढ़ लेंगे, लेकिन जो हाँ। ये पढ़ेगा ना वो क्वालिफाई में जाएगा, right. क्योंकि फोरेंसिक साइंस सारे पढ़ के आएंगे तो ये एक बेसिक रेंज मिल जाएगी उनको नंबर की, लेकिन एक्स्ट्रा कौन होगा जिसको ये बाकी सारी स्किल्स आती होंगी, तो वो एक ब्रैकेट बढ़ जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर के स्किल्स आप गेन करो, ओ लेवल के एग्जाम्स दो, उनको क्वालिफाई करके उनका सर्टिफिकेट रखो, डिफरेंट गवर्नमेंट के जो एग्जामिनेशन हैं, सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, वो क्रैक करो, फैक्ट है, फैक्ट प्लस है, इनको हम्म। क्रैक करो, इनके थ्रू भी आप नॉलेज गेन कर सकते हो या स्किल गेन कर सकते हो, और ये आपको आगे जाकर के हेल्प करेगा। सब्जेक्ट नॉलेज बहुत जरूरी है जैसा मैंने पहले ही बोला था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं लोगों को ये बोलता हूँ वो है फियर ऑफ फेलियर। फेलियर से डर बहुत जरूरी है, डरना बहुत जरूरी है। हमारे टीचर थे वो कहा करते थे कि डरना बहुत जरूरी है। अब डरोगे तो पढ़ोगे, पढ़ोगे तो स्किल गेन करोगे, और स्किल गेन करोगे तो क्वालिफिकेशन की चांसेस बढ़ जाएंगे। और हम्म। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं अपना पर्सनल टिप दूंगा कि ऑलवेज स्टडी इन अ ग्रुप। चाहे आप हम्म। 2 लोगों का ग्रुप बना लो, चाहे 4 लोगों का ग्रुप बना लो, क्योंकि ग्रुप से आपको अपनी कमियां, अपनी अच्छाइयां आपको पता चलती हैं। तो जब आप ग्रुप में पढ़ाई करोगे, 2 लोग 3 लोगों का ग्रुप अगर आपका है, जैसा कि मेरे साथ भी था, मेरे साथ कई सारे मेरे जो अभी साइंटिफिक असिस्टेंट्स हैं या कई सारे ऑफिसर्स भी हैं जिनका हमारा एक ग्रुप है, तो हमने ग्रुप में स्टडी की और ये हमको बहुत हेल्प किया इन गेनिंग द जॉब दैट वी आर डूइंग राइट नाउ। ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर एडवाइस, और बहुत ही अच्छा तरीके से आपने जो है हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करा, और उन्हें डेफिनेटली काफी बेनिफिट होने वाला है इसके थ्रू। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर एंड फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। वी आर ग्लैड टू हैव यू हियर। थैंक यू सो बिल्कुल, मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू प्रियांशी, एंड थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग ऑल दिस। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस कि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं या इस फील्ड के बारे में बताऊं, क्योंकि जब मैं था तो मुझे भी इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट थी। इट इज अ गुड थिंग दैट यू आर गोइंग डूइंग दिस एंड हेल्पिंग अदर स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग एस्पिरेंट्स टू गेट द गवर्नमेंट जॉब। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।